June 15th today. Quite the lazy day for me. I got caught up with a lot of work. I'm sitting inside of Gulflander, as you can see. This is my bedroom. And I'm waiting outside a television production studio. Well, it's a local TV station for the Indian community. And उन्होंने मुझे बुलाया है कि कुछ इंटरव्यू करें कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, why I'm in this town and what I'm hoping to do, and that I have a lecture on the 17th, so I'd like to promote. It's like I'm releasing a movie like an actor. Yeah. So I'm trying to get the Indian community to come out there because there's a musical evening on the 17th where right after my talk, there's a local group that's going to sing old Hindi songs, and maybe I'll get one song in as well. Lots of people can raise money. Maybe I can raise money by threatening to sing. Effectively, we meet the goal, right? Fundraising. So yeah, the local angels that I've had in 2019 when I was here, Junaid Bhai and Nazim Bhai and his merry men and women who have gathered around to get this going for me is a blessing in itself. And well, I have to do my bit, and here I am to promote it. Finding parking for Gulflander is not very easy, but this time of the day, I guess most of these office buildings are empty, and there she is while I go and enter this building that I have been scheduled for thanks to Angel Shefali, who couldn't be here but has coordinated all of this by her good offices. Well, this nice young lady Amrit is escorting me into what they call Connect 101.7, where Jarnail Saab is going to be talking to me, hopefully, about the things that I'm here to do. Construction mortgage या lot loan, mortgage the best rates at a ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਹੁਣੇ ਔਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ। ਲਓ ਜੀ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8:33 ਤੇ 43 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਦਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਘੀ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਐਡਮਿੰਟਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ विराजमान ने अनिल श्रीवास्तव जी। अनिल श्रीवास्तव जी, वेलकम जी। थैंक यू बसोटा साहब, आपके यहाँ आकर मेरा सौभाग्य खुल गया, क्योंकि आपके बारे में काफ़ी सुने हैं और जी आपके साथ चर्चा करने का ये मौका मिल तो गया। जी अनिल जी, ये बताइए कि जो ऑर्गन डोनेशन है, बहुत लोग पहले भी काम करते हैं जी, लेकिन फिर भी अभी तक उतनी अवेयरनेस नहीं आई लोगों पे। आपको कैसे ये लगा हुआ? ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑर्गन डोनेशन के बारे में, अंगदान के बारे में बहुत लोग जानते हैं, मगर उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। सुना है उसके बारे में, पर वो होता क्या है, उसको कैसे साकार करें, वो बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपके लाइसेंस पर भी आप हाथ दर्ज कर दीजिए कि हम ऑर्गन डोनर बनेंगे, उसके बाद क्या होगा किसी को नहीं पता, उसके बाद होना क्या चाहिए किसी को नहीं पता। इसलिए 10% से कम लोग जो साइन अप किए हैं अपने ड्राइवर्स लाइसेंस पे, उन्हीं का ऑर्गन्स डोनेट होता है और बाकी 90% वेस्ट हो जाते हैं। आप अपने बारे में बताइए, आप का कैसे इस कैंपेन के साथ लगा हुआ, कैसे मन में आया कि क्योंकि आप अपने अंगदान कर सकते हैं, ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, पर लोगों को मोटिवेट करना, ये कैसे मन में ख्याल आया? ये ऐसा है कि जब हम भुक्तभोगी हो जाते हैं तो तब एहसास होता है कि हम क्या कर सकते हैं हम अपने मानवता के लिए। तो यही हम भुक्तभोगी हैं। 8 साल पहले मैंने अपना किडनी अपने भाई को दिया था, उनकी जान को बचाने के लिए, और ये प्रेम के सहित ही हुआ है। अगर प्रेम ना होता तो ये काम होता ही नहीं। पर ये प्रेम जो है ना, पीछे रह जाता है क्योंकि डर सामने खड़ा हो जाता है।
बहुत लोग ये काम नहीं कर पाते हैं अपनों के लिए ही, क्योंकि उन्हें अपने लिए डर होता है। तो मैं भी इस डर से गुजर चुका, और इस डर को हम देखते देखते हम ये समझ में आ गया कि इस बात से कि इसमें कोई डरने वाली बात थी नहीं। पर डर पैदा कैसा होता है? डर पैदा इसलिए होता है क्योंकि जो जवाब का सवाल नहीं मिलता ना, उस सवाल से, यानी जिस सवाल का जवाब नहीं मिलता उस सवाल से हम डरने लगते हैं। तो मैं सोचा कि क्यों ना इस जवाब का सवाल मैं देते जाऊं लोगों को, और मैं 10 लाख लोगों के साथ मैं बात करना चाह रहा हूं, इसलिए इस दुनिया के दौरान, इस दुनिया के जो भ्रमण करने निकला हूं, ताकि अगर 10 लाख लोगों तक हम इस पैगाम को पहुंचा पाएं, तो अगर उनमें 10% भी आगे आगे आकर अंगदान करें अपना, तो वो 1 लाख लोगों की जिंदगियां बचेंगी। और सिर्फ मेरे प्रयत्न के कारण अगर हम सब जुड़कर, हम सब मिलकर ये काम करें, तो ऐसा टाइम आएगा जहां पर अंग ना मिलने से कोई नहीं मरेगा। भले किसी और चीज से मरे, वो हमारी किस्मत और तकदीर की बात है, पर अगर हम सफल हो गए हमारी ही कम्युनिटी में, जैसे यहाँ पर एडमिंटन में बहुत लोग जानकारी नहीं, उनको पता नहीं है कि अगर एक किडनी के साथ जी पाएंगे कि नहीं। यस, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ। देखिए, प्यार रिश्तों में होता है, चाहे हस्बैंड वाइफ का, बहन भाई का, भाई भाई, दोस्तों में भी होता है। और मैंने देखा भी है, जैसे आपने किडनी दी है, मेरे पास रीसेंट एग्जांपल है, आपने सदूर सिकंदर जी के बारे में सुना होगा। ही वाज अ वेरी प्रोमिनेंट सिंगर। ओके, तो उसकी वाइफ ने अपनी किडनी निकाल कर दी। उसने कई किनको दिया उन्होंने? अपने हस्बैंड हस्बैंड सदूर सिकंदर को। जी। तो ऐसे एग्जांपल्स और भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने बात की थी, मैं उसी पे आना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं हर इंसान के मन में डर है कि मैं अगर किडनी निकाल देता हूँ अपनी, पता नहीं मैं बच पाऊंगा कि नहीं। ये डर कैसे दूर किया जाए? ये सिर्फ जानकारी के साथ किया जाए। अगर एक सुनसान गली में आपको हम कहेंगे कि आप जाइए और उस तरफ आपका कोई अपना बैठा है जिसकी जान की जरूरत, आपकी हेल्प की जरूरत है, पहले आप देखेंगे अरे सुनसान गली पार कैसे करूं, अंधेरे में कैसे जाऊं, अपने लिए डर लगता है। तो जो इंफॉर्मेशन अगर उसी सुनसान गली में हम फ्लड लाइट कर दें और उनको दिख भी जाए कि रास्ता साफ है और वहां पर मैं जाकर उनको बचा पाऊंगा, तो ये इंफॉर्मेशन के साथ ही होता है। क्या इंफॉर्मेशन चाहिए इनको कि वो ठीक रहेंगे कि नहीं? मैं अपना ही उदाहरण देता हूं। और हाल ही में एक और किडनी डोनर जो है अमेरिका से हैं, उन्होंने हर ऊंची पहाड़, हर कॉन्टिनेंट में एवरेस्ट को भी मिलाकर उन्होंने चढ़ाई की है एक किडनी के साथ। मेरा तो सिर्फ मैं दुनिया अपनी गाड़ी में बैठ के दुनिया घूमकर मैं ये प्रवचन कर रहा हूं, पर उन्होंने, और हम जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो हम अव्वल नंबर के एथलीट्स हैं एक किडनी के साथ। अब पता नहीं आपकी वीडियो आ रही कि नहीं, पर मैं एक टी शर्ट पहना हूं टीम इंडिया करके। ये हमारी टी शर्ट है जहां पर वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में मैं टीम इंडिया के लिए एक एथलीट हूं। इन 2019 मैंने इंडिया के लिए गोल्ड जीती है, और मैंने 100 मीटर का जो रेस है, उस समय मेरी उम्र 51 की थी, मैं 13.6 सेकंड्स में उसको कंप्लीट किया है। बचपन में या हमारी जवानी में भी कर नहीं पाया, पर एक किडनी के साथ ये मुमकिन है, पर डरने का सवाल ही नहीं उठता। और मेरा सवाल ये है, हाँ, कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी, पर ये क्या गारंटी है अगर मैं किडनी डोनेट करूं किसी जरूरतमंद को, मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? गारंटी किसी बात की नहीं है। आप बाहर जाकर आप चलने लगेंगे, उसकी भी गारंटी नहीं है कि कोई गाड़ी आपको आके मार भी ले। गारंटी ये है कि अगर डेटा देखा जाए, 99%, 98% लोग ठीक ही हैं। ऐसा नहीं कि मैं पहला आदमी हूं जिन्होंने किडनी दी है, मुझसे पहले हजारों दिए हैं, मेरे बाद भी हजारे दिए हैं, तो वो अभी ठीक ही हैं। अब ऑड्स, डॉक्टर ये कहते हैं कि 1 in 3000 पेशेंट्स डाई ऑन द टेबल। यस, वो ऑड्स हैं। अब उसको सुनकर मेरी बीवी तो घबराई गई, क्योंकि इंडिया में उनकी सहमति की जरूरत पड़ी कानूनी तौर से। ओके, पर इंफॉर्मेशन के साथ उनकी भी मन बदल गया। क्या इंफॉर्मेशन थी? तो ये जो 1 in 3000 वाला ऑड्स है,
आपको एक और ऑड वो डर पैदा करता है। वो आपको एक और ऑड बता देता हूं जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है कि 1 in 250 people are likely to get hit by a vehicle if you're walking in the streets. तो प्रोबेबिलिटी उसका ज्यादा है और इसका इतना कम है, पर उनको ये समझ नहीं आती कि ऑड्स का मतलब क्या है। पर डॉक्टर ऑड बता देते हैं पर समझाते नहीं है। पर ये ऑड इसलिए इंफॉर्मेशन डर दूर पैदा करता है और जो सवाल का जवाब नहीं मिले वो भी डर दूर पैदा करता है। तो ये बातचीत जारी रखेंगे मास्टर ब्रेक के बाद कुछ और सवालों के साथ बात। जी सर। हो सकता है कईयां ने रेडियो हुणे ऑन कीते ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਨਿਲ श्रीवास्तव ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਨੂੰ दूर ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। जी अनिल जी, एक और क्वेश्चन है। देखिए ये तो होगी जीते जी बात किडनी देने की। कई लोग तो डेथ के बाद भी, हालांकि डेथ के बाद सारा मिट्टी बन जाना चाहिए, कुछ भी नहीं है बॉडी में, तो उस टाइम भी ऑर्गन डोनेट करने से हेजिटेट करते हैं, वो लिख कर नहीं देते। हालांकि आपने बताया है अगर ऑर्गन डोनेट करना चाहते हो लाइसेंस में ऑप्शन है, आपके वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे भी अल्बर्टा लेजिस्लेचर में कैंपेन चलाई थी एमएलए ने जी। तो टोरंटो में हमारे दोस्त हैं अमरजीत राय, वो भी इसी इशू पे मेरे साथ बातचीत करते रहते हैं। तो बड़ा वो शिद्दत से काम कर रहे हैं, ऑनेस्टली और डेडिकेटेड है इसी फील्ड। बढ़िया, और लोग की जरूरत है ऐसे। यस, तो वो मीडिया पर्सन है वो भी। तो मेरा सवाल ये है कि डेथ के बाद पता है लोगों को कि मिट्टी है, जला देना या दफना देना है, मिट्टी में मिल जाएगी बॉडी, तो उस समय से भी क्यों हेजिटेट करते हैं? डेथ के बाद क्या डर रहता है मन में? बस साहब, डर, सबसे बड़ा डर यही है। आप देखने जाओ, अपनी खुद की परवरिश देखें और हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं हमारे कौम में। बच्चे कोई डर से पैदा नहीं होते। हम जब पैदा होते हैं डर चीज क्या है हमें पता ही नहीं है। सही है ना? तो ये जो अब एक मैं कहूं कौन सा भी धर्म इस दुनिया में हो, एक भी धर्म ऐसा नहीं कहता है कि ये मना है या ये बुरी बात है। धर्म का कोई भी ग्रंथ जो है उसमें कुछ लिखा नहीं होता, पर धर्म के जो ठेकेदार है अपना ही जो शंका है उसको वो अपने डिवोटीज में भर देते हैं डर। हम भी अब जब परवरिश हम अपने बच्चों की करते हैं, हम डर दिला दिला के उनसे काम करवाते हैं। बिना डर का काम होता नहीं है, तो हम अगले जन्म का डर पैदा इतना कर देते हैं कि इस जन्म में हम कोई अपना सोचते ही नहीं कि इस जन्म में हम क्या कर जाएंगे भाई। तो अगले जन्म जिस चीज को कुछ किसी ने देखा नहीं, पिछले जन्म उसको भी किसी ने देखा नहीं, इन दोनों चीजों के डर से हम इस जन्म में मानवता भूल गए हैं। आप कहें ना कि हम दफनाएं या जलाएं या कुछ चील कौवों को खिलाएं, धर्म के अनुसार हम अपने शव को क्या कर लेते हैं? जला तो देते हैं। जलाकर, अगर जलाने वाले हैं तो जलाकर हम राख को हम दुनिया में बखेर देते हैं या पानी में। उसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया में जाएं हम वापस जहां से आए थे। तो क्या एक दूसरा मनुष्य इस दुनिया का हिस्सा नहीं है? क्या सिर्फ कीड़े मकोड़ों को हमारा शरीर का आनंद उठा सकते हैं? क्यों ना हम अपना अंग एक दूसरे मनुष्य को दे जो इस दुनिया की ही एक प्राणी है, जैसे कीड़े मकोड़े। अनिल जी, जब हम ये बातें करते हैं जी, these things are more philosophical। नहीं, ये धर्म से जुड़ा हुआ है। हमारा धर्म कहता क्या है कि हम वापस, आप ही ने इस बात को छेड़ी थी कि हम वापस दुनिया में मिट्टी बन के ही जाएंगे। तो जिस शरीर को हम दफनाते हैं, क्या होता है उस शरीर को? कीड़े मकोड़े खाते हैं। और ये जो हमारे पारसी कम्युनिटी है वो टावर ऑफ साइलेंस में अपना डालते हैं। क्यों डालते हैं? उनका मानना है कि मौत में भी हम किसी के काम आए। तो उन्होंने
चील कौवों को अपना शव दे दिया खाने को। भाई किसी मनुष्य को भी दे दो कुछ, भले खाए ना, पर आपके अंगों से वो एक बेहतर जिंदगी जिए या जिए भी। हम चील कौवों से कम क्यों हैं? अच्छा अनिल जी ये बताइए, जब किसी की डेथ हो जाती है इररिस्पेक्ट ऑफ एनी एज, जो ऑर्गन्स हैं, हाँ, कौन कौन से ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं और कितनी देर के अंदर अंदर किए जा सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अब अंगदान देना है तो 3 तरीके से दे सकते हैं। जीते जी किडनी या लिवर दे सकते हैं। हमारा लिवर जो है एक ही है हमारे पास, पर एक उसका छोटा सा भाग निकालकर किसी और को देते हैं जो आप उनसे प्यार करते हो, और आपका जो लिवर है ना वापस सेम ओरिजिनल साइज में आ जाता है 9-8 हफ्तों में। अगर 10% निकाले या 50% निकाले, हमारा 100% हो जाता है, क्योंकि हमारी लिवर कुदरत ने ऐसी चीज बनाई है हमारे शरीरों में। बट मेरा सवाल ये है, पर मरने के बाद इज इट मेडिकली अप्रूव्ड? ऑफ कोर्स, वरना करते क्यों? दुनिया भर में कर रहे हैं। मेडिकली अप्रूव्ड है तभी तो हो रहा है ना। तो मेडिकल साइंस में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सामाजिक प्रॉब्लम है। यस, एग्री। बिकॉज ऑर्गन डोनेशन 3 स्तंभों पे खड़ा है मजबूत। सोशल इशू, सोशल वाला स्तंभ, मेडिकल स्तंभ और कानूनी स्तंभ। कानून और मेडिकल खड़े हैं साथ, वेट कर रहे हैं कि सोशल वाले भाई आ जाओ, जाने बचाएं अपनों की ही। 10,000 लोग डायलिसिस मशीन पे क्यों हैं? क्यों? उनके घर में प्यार कम है क्या? तो मेरे को ये बताइए, जो सवाल है, मेरा ख्याल है आपकी इस बातचीत को बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, बड़ी दूर तक सुनी जा रही है। कितनी देर के अंदर ऑर्गन डोनेट किया जा सकता है? कौन से ऑर्गन? आपके वही सवाल तक आ रहा था, सॉरी मैं थोड़ा डाइग्रेस कर लिया क्योंकि ये जरूरी इंफॉर्मेशन था। मरने के बाद हम सब लोग अंगदाता बन सकते हैं, सभी लोग 100%। ये हमें सोचना नहीं है कि अरे मेरे चश्मे हैं, मुझे ये हुआ है, शायद यूज नहीं होगा। नहीं जी, ये सामाजिक चीज है। जब हम अपना मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद जहां भी जाते हैं, जब हम पैसे दान करते हैं, क्या हम ये सोचते हैं कि वो पैसे कहां जा रहा है? हम श्रद्धा से देते हैं। आप भी, ये दान मतलब श्रद्धा है। मेडिकल कम्युनिटी को डिसाइड करने दें कि आप में क्या यूजफुल है क्या नहीं है, क्योंकि आपको सब चीज पता नहीं है। अब आपको पता था कि आप, अगर आपके आंखों में मोतियां भी होती, कैटरैक्ट, तब भी आप अपने आंखों को डोनेट कर सकते। कुछ लोग सोचते नहीं मेरी मोतियां हैं, छोड़ो जी। अरे ये मेडिकल कम्युनिटी को डिसाइड करने दो। आप बस हाँ कह दे, बाकी सब सिस्टम देख लेगी। तो क्या क्या चीज डोनेट कर सकते हैं? आंख, चलिए आंख पूरा नहीं जाता है, सिर्फ कॉर्निया आता है। अब हमारे आंखों में, कॉर्निया में 2-2 लेयर है, मतलब 4 लोग हमारी 2 आंखों से देख सकते हैं इस सृष्टि को फिर से। इसमें बुरा क्या है? इसी आंख को दफनानी है, जलानी है, खत्म करनी है। लोग ये भी कहते हैं कि इस जिंदगी में हम अपनी आंखें दे दे तो अगले जन्म में हम अंधा पैदा होकर आएंगे। ये डर किसी ने डाल दिया उनके सर में। इसमें कोई बेसिस ऑफ ट्रूथ है नहीं, क्योंकि अगर किसी ने इस जन्म में दिल दे दिया किसी को, क्या अगले जन्म में बिना दिल का पैदा होगा? क्यों? आंखों से ही ये लॉजिक तो हर चीज में होनी चाहिए, नहीं होती है। क्योंकि जब भगवान इस जन्म में सब देता है, अगले जन्म में भी सब कुछ देता है। चलिए वो डर दूर करें, पर 6 या 10 घंटे के अंदर अगर हमारी शव के मौत के बाद अथॉरिटीज को बोले, कौन बोलेगा ये अथॉरिटीज को? हम तो नहीं बोल सकते कि हम मर चुके, लेकिन रिटर्न नहीं, वो भी नहीं। यही ना, यही चीजें हैं जो 10% को ही पता है। जब हम साइन अप करते हैं ना, इससे ज्यादा एक जरूरी काम करना चाहिए आपको। आप अपने फैमिली को बताएं, उनकी सहमति लें, क्योंकि करना उन्हीं को है। अगर उनको आप नहीं बताओगे, आप समझ रहे हो कि आपके लाइसेंस में लिखा है, कोई मैजिकली आपको देख लेगा वो चीज। अरे लाइसेंस तब देखा जाता है जब एक्सीडेंट में मरते हैं। वो कितने लोग मरते हैं एक्सीडेंट? घर पे मरते हैं, अस्पताल में मरते हैं ज्यादातर, वहां कोई लाइसेंस देखता नहीं है। पर जब वो पूछेंगे कि क्या ये ऑर्गन डोनर थे, अगर फैमिली को पता नहीं है तो क्या बोलेंगे? वो नहीं बोलेंगे, पता नहीं बोलेंगे। यस। तो ये बहुत जरूरी है कि आप साइन अप करें ना करें,
पर फैमिली को जरूर बताएं आपकी इच्छा क्या है, क्योंकि फैमिली साकार कर सकती है, और उनको समझाएं कि आपको करना क्यों है। सृष्टि से प्यार, मानवता से प्यार। मुझे आप कहे कि अगर मैं अंगदान देकर करूं, जीवन दान देकर जाऊं, मैं स्वर्ग प्राप्त करूंगा, इसलिए प्लीज कर दीजिए, क्योंकि जब वही खड़े होते हैं लाइन, वहीं से शुरू होता है स्वर्ग के लिए। रिसेंट एग्जांपल है जी। एडमिंटन शहर में एक सीनियर सिटीजन था, उसकी डेथ हुई जी। और वो बहुत अवेयर था ऑर्गन डोनेशन से। उसने अपने परिवार को बताया था कि मेरा क्रिमेशन ना किया जाए, मेरी बॉडी पूरी डोनेट कर दे जी। जैसे ही मेरी डेथ होती है। उसके बाद क्या अंग निकाल ले क्या नहीं निकाल ले उनकी मर्जी है, लेकिन मेरा बॉडी को वो क्रिमेशन ना किया जाए, और परिवार ने वैसा ही किया। अब ये गलतफहमी एक दूर करता हूँ। बॉडी डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन में फर्क है, दोनों सेम चीज नहीं है। अब बॉडी जब डोनेट करते हैं, सिर्फ एक टीचिंग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को ही दिया जा सकता है। ओके। हर कोई एरा गरा अस्पताल नहीं लेगी। जहां पर डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है वहीं लोग लेंगे, और आपके बॉडी का यूज वहीं होता है जब डॉक्टर्स आपके बॉडी को लेकर सीखेंगे डॉक्टर बनने, और डॉक्टर बनने के बाद जाने बचाएंगे। पर अंग नहीं निकालेंगे। अगर बॉडी डोनेट किया तो बॉडी डोनेट किया, अंगों के साथ। ऐसा नहीं कि अंग निकाल के बाकी जो बचा कुचा है वो डोनेट हो जाए। ये दो अलग चीज हैं, इसमें दो अलग कानून हैं। तो अपने बारे में बताइए, आप इंडिया से चले हैं जी। आपने ये भी बता दिया कि आपने अपनी किडनी अपने भाई को डोनेट कर ली, तो और आप भी बिल्कुल ठीक है, भाई की जान भी बच गई। हाँ जी। तो ये सेल्फ एंड बिगेस्ट एग्जांपल है। तो ये जो आपकी बात है बहुत दूर तक जा रही है। तो कैसे आप अवेयरनेस ला रहे, आपके पास क्या क्या प्रयास है, आप क्या क्या प्रयास करेंगे ताकि लोगों में अवेयरनेस लाई जा सके? आपने कहीं इस वन में बॉलीवुड से भी समथिंग किया है? नहीं, बॉलीवुड में तो मैंने कुछ नहीं किया है, पर कुछ बॉलीवुड स्टार्स मेरे पीछे आकर मेरे सपोर्ट में आ गए थे। ओके। जो 2019 वाले वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स के लिए था, वो सब मेरे यूट्यूब चैनल में मौजूद है। लोगों को देखना है तो गिफ्ट ऑफ लाइफ एडवेंचर है मेरा यूट्यूब चैनल का नाम, या इंस्टाग्राम या फेसबुक, वहाँ दिख जाएगा सब कुछ। पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं कुछ अवेयरनेस लाने के लिए। कोई लोग मैराथन दौड़ते हैं, कोई लोग वॉकिंग करते हैं, कोई लोग साइकिलिंग करते हैं अवेयरनेस की आड़ में। मैंने चुना है कि मैं दुनिया भर अपनी गाड़ी में चलाकर लोगों तक जाकर लेक्चर्स दूं। तो मैं लेक्चर्स देते जाता हूं जहां पर मुझे लोग इनवाइट करते हैं। हालांकि मैं एडमिंटन इसलिए आया हूं यहां कर क्योंकि 17 शाम को, फ्राइडे इवनिंग को, इंडिया कल्चरल सेंटर जो है वहां पर मेरा एक प्रोग्राम है, और उसके बाद एक म्यूजिकल प्रोग्राम भी है जहां मेरा एक निजी मुराद पूरी हो जाएगी कि लोगों के सामने मैं भी एक गाना गाऊं। पर उससे पहले मैं यही बात करने आ रहा हूं, पर मैं आपके श्रोताओं को ये कहने आ रहा हूं कि वो बोरिंग प्रोग्राम नहीं होगा, प्रॉमिस। अनिल जी, यू आर एट द राइट प्लेस। आपको कनेक्ट नहीं, लोगों के साथ कनेक्ट कर दिया है। अभी बहुत दूर तक आपकी ये जो इच्छा है वो पहुंच रही है, उजागर हो रही है इस माध्यम के जरिए। आप कहते हैं मैंने संगीत प्रोग्राम में जाना है, आप कहते हैं मैंने लेक्चर देना है, तो इससे कितनी को अवेयरनेस आ सकेगी? बसोरा साहब, आप ध्यान दें, जब लोग मेरे सामने बैठ के सुनते हैं, सुनना एक अलग किस्म का अवेयरनेस, क्योंकि वो सुन रहे हैं। अगर सोशल मीडिया में मैंने 2-3 पोस्ट लगा दी, वो 3 सेकंड भी नहीं देखेंगे उसको। अगर देख भी लिया तो समझेंगे नहीं। तो इसीलिए अगर मुझे ये काम करना होता कि 10 लाख लोगों तक पहुंच जाऊं आपके माध्यम से, और वैसे दूसरे मीडिया के माध्यम से मैं पहुंच चुका हूं, आगे भी निकल चुका हूं, पर मैंने प्रण ले लिया है कि मैं आमने सामने लोगों से बात करूं, वो देखे, वो मेरी बात समझे, तब ही उनके दिमाग में ये बैठ जाएगा, ये इंफॉर्मेशन आएगी और वो निर्णय सही लेंगे। क्योंकि सही निर्णय से सही इंफॉर्मेशन से सही निर्णय होता है। और ये 10 लाख लोगों तक पहुंचने का प्रयास यही है। आज अब तक मैं 44 कंट्रीज घूम चुका हूं अपनी गाड़ी में, 600 से ज्यादा लेक्चर्स दे चुका हूं, और 1 लाख
32,000 लोगों से अभी बात हुई है, 10 लाख तो बहुत दूर की बात है। अगर इसी मुकाम से मैं चलता रहूं, मैं 80 साल का हो जाऊंगा जब तक मैं वो 10 लाख तक नहीं पहुंचूं। जी, पर होल्ड पे रहना, कमर्शियल ब्रेक के बाद 5 मिनट के लिए और बातचीत करेंगे। आपने इंडिया से सफर शुरू किया तो उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज में होते हुए जी, यहाँ पहुंचे। अब नेक्स्ट मंजिल क्या है आपकी? इसके बाद कहाँ जा रहे हैं आप? तो इस दौरान मैं 1 साल तक गाड़ी में बैठा रहूंगा, क्योंकि मेरा मकाम है कि मैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया तक जाऊंगा गाड़ी में ही। अब ऑफ कोर्स कहीं कहीं जब जहाज में डालना पड़े गाड़ी को वो हो ही जाएगा, पर यहाँ से मैं व्हाइट हॉर्स में जाऊंगा और फिर नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में, वहाँ पे कुछ छोटे छोटे कम्युनिटीज हैं जिसके यहाँ पर मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ, और वहाँ से मैं अर्जेंटीना तक गाड़ी चला के जाऊंगा, और अर्जेंटीना से शिप में डाल के सिडनी तक, और सिडनी से पर्थ में जाऊंगा। मुकाम है पर्थ तक पहुंचना। क्यों? क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स है जो ओलंपिक एसोसिएशन रचाती हैं, वो पर्थ में नेक्स्ट ईयर अप्रैल में है। तो वहां पर मैं टीम इंडिया का एक सदस्य हूं, और वहां मैं फिर से गोल्ड जीतने की प्रयास में हूं टीम इंडिया के लिए। वहां पर कम्पीट करने जा रहा हूं। लोग प्लेन पकड़ के जाते हैं, मैं सोचा अगर मैं ड्राइव करके जाऊं तो अवेयरनेस ज्यादा बढ़ेगी, लोग ज्यादा चर्चा करेंगे इसके बारे में, लोग बातें करेंगे मीडिया को। तो आप ये जो कैंपेन चला रहे हैं जी, अकेले इस दौरे पर हैं या बीवी और बच्चे साथ well, हैं? पहला दौरा जो था, मैं बेंगलोर से इंग्लैंड गया था, स्कॉटलैंड गया था अप्रैल ऑफ 2016 में। वहां पर बच्चे भी साथ थे और बीवी भी साथ थी। अब बच्चे खैर बड़े हो गए और अपनी जिंदगी में जी रहे हैं, पर नॉर्मली बीवी होती है मेरे साथ। इस बार नहीं है, पर व्हाइट हॉर्स में, यूकॉन में, वहां आके मुझसे जुड़ जाएंगी जी, और साथ वहां से साथ रहेंगे जी। और अब आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे लिसनर्स को इसके बारे में? आखिर में ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आपके हाथ में जिंदगियां बचाने की जो शक्ति भगवान ने दी है, आप देखिए, आध्यात्मिकता अगर नहीं चाहिए तो हम ये आविष्कार भी नहीं कर पाते। जब जब मानवता को जरूरत पड़ती है, तब तब हम ऐसे आविष्कार करते हैं जहां पर मानवता की सेवा में हो, और ये आध्यात्मिकता ही मुमकिन करता है। ये दो चीज अलग नहीं है। विज्ञान और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिज्म साथ ही है। तो आप ये मान के चलिए, अगर हमारी विज्ञान को ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि अंगदान से लोगों की जिंदगी बचे, तो आप ये जरूर समझें कि ये ऊपर वाले की ही वरदान है, वरना ये हमें ये जानकारी नहीं होती। तो प्लीज आप उसको छोड़कर आप मानवता के बारे में बात करें। अंगदान जरूर आकर करें, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप करें। आपको इनफ इंफॉर्मेशन दिया जाएगा ताकि आप ये निर्णय खुद लें, क्योंकि किसी को थोप कर करना वो नहीं सहता किसी को, राइट? ये आपकी निर्णय है, मेरी नहीं है। पर मैं ये कहता हूं कि प्यार इस सृष्टि को घुमाती है, डर नहीं। डर को दूर करें और प्यार को बढ़ने दें, क्योंकि डर के आगे जीत नहीं है दोस्तों, डर के आगे प्यार है, और प्यार की जीत हमेशा होती है। वाह। तो इवेंट के बारे में बताइए जो आप एडमिंटन में कर रहे हैं, जहां शामिल हो रहे हैं। ये 17 शाम को है, जहां पर ये इंडिया कल्चरल सेंटर का जो हॉल है। अगर वहां पर आप आए और हमसे मिले और हमारी बातें अलग सुने, जो बातें मैंने आज की है, मेरे टॉक में कुछ अलग जरा सा होता है, और आपको हंसाएंगे भी थोड़ा। मैं स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करूंगा, ये एक सीरियस इशू भी नहीं है, पर एक अच्छी इशू है। आइए मजा करेंगे और अच्छे गीत सुनिए। मैं भी एक गाना गा लूंगा आपके लिए। जी, बहुत बहुत मेहरबानी अनिल श्रीवास्तव। आपकी भी, जो आप यहाँ पर मुझे आकर आपका वक्त दिया और आपके श्रोताओं से जुड़ने का मौका मिला। मेहरबानी।